So today we will discuss about some more things of soil fertility and nutrient management. Yesterday we have discussed some introduction to soil fertility and nutrient. What is nutrition? What is minerals? What are the type of nutrients based on the criteria of essentiality? Those 17 nutrients we have discussed, and we have. I have also given some YouTube links that is available in the website, and you have to visit and you have to show you have to see those videos, because if you will not see those videos, then your basics of soil science will not be clear. Understood? I have given biological nitrogen fixation videos. I have given cation exchange capacity, anion exchange capacity, what is base saturation, what is exchangeable sodium percentage. Okay, so those videos are available in the website. Okay, you can visit and go through the link and watch the YouTube video. Understood, everyone? Yes, sir. So anyone saw that links in the website? No one? Okay, so I think one more clay mineralogy part I have also given, because that is also most important. From that part, one or two questions need to come. So complete clay mineralogy part I have explained in that video. Complete. Okay, so you will not get any extra thing. Even soil science students also can prefer that that video. Okay, and one more is what is diffusion, what is mass flow, okay, what is root interception, what is Casparian strips, okay, what is board concept given by Epstein. That also I have explained very well in that video. So you have to see those videos, okay, so that you can grasp a depth of soil science, okay, because those are basics of soil science, so we have to have a knowledge on that. Okay, also I have explained about diagnostic soil fertility evaluation diagnostic techniques that is there in your syllabus. Okay, so that is that couldn't cover because it requires a lot of time. So I have already made the video, so I have just shared that video links to you. समझ में आ रहा है सबको? तो Yes, sir. आज हम डिस्कस करेंगे मतलब सॉइल फर्टिलिटी का दूसरा चैप्टर, okay, जो कि हमारा कल हम डिस्कस किए कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट से जो भी हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट उनका फंक्शन क्या है, उनका डेफिशिएंसी क्या है, अगर वो एक्सेस हो जाएगी तो क्या होगा. okay? तो वो सारे डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लॉस आर प्रेजेंट फॉर दोज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द ग्रोथ लॉस आर प्रेजेंट. okay, so today's motivation for you, that today's the quote of the day is, if you know that you can do it, then no one can stop you. Okay, अगर आपने ठान लिया कि आप ये कर सकते हैं तो आप कोई भी रोक नहीं सकता. ठीक है, तो believe in yourself and go for it. Okay, that's the quote of the day for you. And every day you should accumulate some new things, that I learned this thing today. So that is one of the most thing I would like to suggest you, that every day you write in your note that today I learned this thing. Whole day today I learned this thing. So that would be a good practice for you, that how you are growing, or you can see your growth every day. Okay. So today we are going to discuss about laws of plant growth, and then we will enter to the fertilizer part, and we will end up with the nitrogen fertilizer. Okay. So what are the laws of plant growth? The first and most important law, that is law of minimum. Okay. This law has changed the entire scenario of soil science. Okay. Yes or no? So this law was given by J.B. Liebig, Justus von Liebig, during 1840 and 42. This year was given in Reddy 1862. Okay, you will see it was wrong. Okay, they have given wrong, 1862 they have given. Okay, but actually is 1842. 1842. Okay, Sprengel also was there. Okay, Sprengel was there with the J.B. Liebig, but his name is not to come. Okay, उनका नाम नहीं आता है इसमें.
तो जेबी लेविक को ही हम लेते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। तो इन्होंने जब ये लॉ दिया ना, तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो थिंकिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल साइंस हैज बीन चेंज्ड, एंटायरली चेंज्ड। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बात बताया जो कि पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है वो बदल गया। उन्होंने बोला कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड, एक प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड है अगर बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। मतलब प्लांट में बहुत सारा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ऐसा नो, पर जो छोटा वाला होगा, जो कि जो न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, और वो अगर स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ को रोक देगा। उन्होंने ये बात बताया, और सारा का जो लॉस है वो पूरा का पूरा चेंजेस हो गया। प्रीवियसली पहले वो क्या सोचते थे कि वाटर एज ए न्यूट्रिएंट, देन हमारा सॉल्ट पीटर एज ए न्यूट्रिएंट, तो वो बहुत सारे प्रॉपर्स लॉस से ट्रेंडमली आ रहा था। पर इन्होंने आके बता दिया कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, ऑल अदर्स बीइंग इन एडिक्वेट क्वांटिटी। दूसरे न्यूट्रिएंट क्या हो गए, पूरा का पूरा एडिक्वेट में ही रहेंगे, ठीक है। और एक न्यूट्रिएंट जो कि एक स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, वही न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ को लिमिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सब है, NPK है, सब है, पर एक न्यूट्रिएंट अगर बोरन हो गया हमारा, अगर बोरन छोटा पड़ गया तो क्या होगा, बोरन डेफिशिएंसी दिखाएगा, और हमारे जो प्लांट ग्रोथ इट विल बी लिमिटेड। Understood? So this concept can be restated as barrel concept. Okay? अगर आपके बैरल लें, ठीक है, तो बैरल में क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसा नो। So the barrel will not completely fill because from here the water will be gradually run off. So water will be filled only up to this. This portion will be always be empty. ठीक है। तो जो छोटा वाला पोर्शन है ना, उसको अगर भर नहीं दिया गया तो क्या होगा, ग्रोथ जो वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? एवरीवन अंडरस्टूड द लॉ ऑफ मिनिमम? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। या तो लॉ ऑफ मिनिमम जो कि फादर है जेबी लिविक, इनको फादर ऑफ मतलब किसका बोला बोला जाता है, फादर ऑफ, कौन बताएगा, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। या फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। मतलब इन्होंने पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना, थॉट प्रोसेस है, वो उसको ही बदल दिया, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। कहते हैं हमारा लॉ ऑफ ऑप्टिमा। लॉ ऑफ ऑप्टिमा इसको किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था इन 1905। उन्होंने क्या बोला था कि अगर प्लांट में बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्टर है, और इनको अगर हम एक प्रतियोगिता की देखें, मतलब एक रेपिटेटिव फैक्टर, उनका जो रेपिटेटिव होता है, मतलब एक्टिविटी अगर देखें, तो जो फैक्टर बहुत ज्यादा स्लो है, तो वही ज्यादा एफेक्ट करेगा प्लांट ग्रोथ। ओके, इन्होंने ये बोला था। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनड as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor. For example, एक कंपनी में बहुत सारा एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, पर वो कंपनी का जो रेट है, उनको एक काम दिया गया कि आप 15 दिन में फिनिश कीजिए, पर वो जो कंपनी का जो ग्रुप होगा, जो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही लेजी होगा, उसको लेके वो जो प्रोसेस है ना, वो 20 दिन चला जाएगा, ठीक है, वो फास्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऑल आर फास्ट एंड स्मार्ट, देन इट विल फिनिश विद इन 10 to 15 days. अंडरस्टूड? लॉ ऑप्टिमा क्या कहते हैं? अगर
प्लांट में बहुत सारा रेपिटेटिव फैक्टर्स है। रेपिटेटिव अगर उनका देखा जाए तो डिफरेंट फैक्टर्स आर अवेलेबल, पर रेट ऑफ द प्रोसेस विल बी लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। जो बहुत ही स्लो होगा उसको आधार करके जो रेट ऑफ प्रोसेस वो स्लो होगा। इसको किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था इन 1905। आपको वो जो ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिस्चरलिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात कहा है। ओके, इन्होंने क्या किया, हम जो मतलब ग्रोथ है हमारा, जो प्लांट ग्रोथ है जो कि हम यील्ड के स्वरूप में देखते हैं, और हमारा जो रहा है सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, तो उसका एक रिलेशन दे दिया इन्होंने। मतलब हम न्यूट्रिएंट कितना देते हैं और यील्ड कितना इफेक्ट हो रहा है। तो दरअसल अगर हम डिमिनिशिंग रिटर्न देखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली अगर हम देखें तो क्या होता है, जब हम पहला साल न्यूट्रिएंट देते हैं तो यील्ड बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ना। देन दूसरा साल देते हैं और थोड़ा ज्यादा होता है, तीसरे साल और थोड़ा ज्यादा, एक पॉइंट आते हैं, मतलब एक प्लेटी हो जाते हैं, यील्ड बढ़ता नहीं, बस इक्वल यील्ड मिलता है। आफ्टर दैट द यील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाई। आप जितना भी न्यूट्रिएंट दे पर यील्ड आपका इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसी लॉ को इन्होंने आधार करके बताया कि when plants are supplied with adequate amounts of all but one limiting element, उनको सब देंगे पर एक न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, their growth is proportional to the amount of this one limiting element। उनका जो ग्रोथ होगा वो इसी न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। वो बढ़ सकता है, वो घट भी सकता है। ठीक है, he developed an equation relating growth with the supply of nutrients। okay, और इन्होंने कब दिया था ये? 1909 में दिया था। ठीक है, लेबिग लॉ 1840-1842, लॉ ऑफ ऑप्टिमा 1905, मिस्चरलिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न 1909। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि अगर एक प्लांट में सारा का सारा न्यूट्रिएंट एडिक्वेट दिया जा रहा है, पर जो ग्रोथ है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा? जो वन लिमिटिंग एलिमेंट जो कि लिमिटेड होगा, उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। तो इन्होंने बताया कि dy by dx इज इक्वल टू a माइनस वाई इंटू सी। dy by dx मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, प्लांट में जो रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है। a इज मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड, मतलब कितना तक आ सकता है उस क्रॉप में, उसको ए की तरह डिनोट किया गया। और जो y है, इट इज द एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड एट एनी लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ओके, इट इज द एक्चुअल यील्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर। मतलब हम एक नॉर्मली अगर करेंगे और एक बहुत सारा एडिक्वेट, एवरी सिचुएशन विल बी गुड and where the maximum potential yield can be obtained. For example, in the variety, they have written that the potential yield is 20 क्विंटल पर हेक्टर। पर 20 क्विंटल पर हेक्टर आता कहाँ है? आता है 15 आता है, 16 आता है, या 12 आता है, या 18 आता है, मतलब उसके आसपास के वैल्यू आते हैं, पर 20 क्विंटल पर हेक्टर वो नहीं आता है। Yes or no? So that is called maximum potential। मतलब उतना तक आ सकते हैं। अगर हम सारा का सारा एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, सारा का सारा एडिक्वेट प्रोसेस अगर देंगे तो उतना तक आ सकते हैं, पर वो आता नहीं है। ठीक है, एंड एक्स एंड सी आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स। अगर हम देखा जाए इसको, अगर हम लॉग अप्लाई किया जाए, क्योंकि जब एक रेट ऑफ स्मॉल चेंज होता है, ओके, जब कुछ छोटा छोटा चेंजेस होता है, मतलब स्मॉल यूनिट के चेंज होते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? लॉग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लॉग यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉग यूज करने के बाद तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, लॉग a माइनस वाई इज इक्वल टू k माइनस सी एक्स, और लॉग a माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a माइनस सी एक्स। ओके, इसको ब्रे ने क्या किया? मॉडिफाई करके एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया, लॉग a माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a
माइनस C1X माइनस B। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ब्रे का मॉडिफाइड फॉर्मूला है मिस्टर लिस के, ओके, ब्रे का मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ठीक है। एंड समटाइम इन द एग्जाम सी वैल्यू पूछा जाता है, मिस्टर लिस लॉ में सी वैल्यू कितना था। तो नाइट्रोजन के लिए 0.122 है, फॉस्फोरस के लिए 0.60 है एंड पोटेशियम के लिए 0.40 है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि 122 अगर आप हाफ किया जाए तो 60 आता है, देन -20 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा पोटेशियम का, ओके। 122 डिवाइड कर दीजिए, 60 आ गया, -20 कर दीजिए तो आपका आ जाए 0.40। देन आता है हमारा इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉ है और आप अगर रिसर्च करेंगे तो इसके ऊपर आधार करके आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा के लिए यूज होगा एनी रिसर्च। तो इसको किसने दिया था? विल्कॉक्स ने दिया था 1929। अगर आप किसी भी एग्जाम जनरल एग्रीकल्चर का दे रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ईयर पूछे थे, विल्कॉक्स इन व्हिच ईयर प्रपोज दिस लॉ, ओके। इन्होंने क्या बताया? द पावर ऑफ ग्रोथ or yielding ability of any crop plant is inversely proportional to the mean nitrogen content in the dry matter. Okay, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। The power of growth or yielding ability, okay, जो yielding ability होता है प्लांट का, ये inversely proportional to the mean nitrogen content in the dry matter. For example, दो क्रॉप लेते हैं, एक लेते हैं राइस, एक लेते हैं ग्रीन ग्राम। मुझे बताइए यहाँ पे मीन नाइट्रोजन कंटेंट किस पे बहुत ज्यादा होगा? Where the mean nitrogen content will be more? Anyone? Where will be the mean nitrogen content will be more? In rice or in green gram? बताइए, 4 साल तक पढ़ाई की एग्रीकल्चर, इतना तो बताइए आप। दिमाग लगाइए, क्योंकि सॉइल साइंस और जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं ना, आपको इमेजिन करना चाहिए। जितना आप इमेजिन करेंगे ना, उतना जल्दी आप कैचअप मतलब कर पाएंगे चीजों को। बताइए, राइस में अगर देखा जाए तो बायोमास बहुत ही कम होता है, ये सो ना, एज कम्पेयर टू ग्रीन ग्राम। तो इसका मीन नाइट्रोजन कम होगा और ग्रीन ग्राम में मीन नाइट्रोजन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो यील्ड आता है हमारा, राइस का बहुत ज्यादा होता है एंड ग्रीन ग्राम बहुत कम होता है, ठीक है। समझ में आया अभी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. या समझ में आ रहा है, राइट, सब कुछ? Yes, sir. ओके। सो इन्होंने बोला कि और क्या बोला? ए क्रॉप प्लांट विथ हाई मीन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई मैटर हैज लेस ड्राई मैटर प्रोडक्शन पोटेंशियल देन ए क्रॉप प्लांट विथ लो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जहाँ पे मीन नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, वहां पे यील्ड का जो कंटेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है प्लांट का, वो एबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर मीन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तो उनका जो यील्ड पोटेंशियल है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है, उसका अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो उसका जो कैपेसिटी है काम करने का बहुत कम होता है। अगर जो बहुत ही एक्टिव रहता है, वो जो कि फिट एंड फाइन रहता है, उसका काम करने का जो प्रोसेस रहता है, जो स्पीड रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ओके। यही मतलब है इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ का। इसको किसने दिया था? विल्कॉक्स ने दिया था इन 1929। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज Massey poverty adjustment. Okay, so Massey in 1936 proposed this law. So poverty मतलब क्या है? भूख। Yes or no? Poverty मतलब भूख, hunger we can say in English, hunger. Okay, so plant में भी hunger होता है क्या? Yes, जरूर होता है, क्योंकि अगर देखिए एक different nutrient होते हैं, okay, 1 and 2 for example I will take different nutrient A and B, ठीक है। So
इनका ना अगर कुछ पार्ट है, इनका एक मतलब लेवल है, अगर उससे नीचे चल जाएंगे तो क्या होगा, भूख लगेगा इनको, ऐसा ना, इस न्यूट्रिएंट का भूख होगा। अगर बढ़ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इनको एक ऑप्टिमम लेवल में रखते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन। उसको बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन। सो इन्होंने क्या बोला, he states that there is a relationship exists between sufficiency of a nutrient and its percentage content in the plants. So plant में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स तो पाए जाते हैं, कितने भी कंटेंट, 1 हो, 2% हो, 0.2% हो, 0.1% हो, मतलब एक्चुअल कंटेंट टू द सफिशिएंसी लेवल, मतलब पूरा पूरा जो सैचुरेट लेवल होता है। फॉर एग्जांपल I have not eaten yet now, okay, so फिर भी I should able to work now, so मेरे अंदर अभी भी एनर्जी है, अभी भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू टेक द क्लास, पर मैं भूखा हूं अभी तक, स्टिल आई एम हंगर। सो इफ आई टेक द फूड देन आई कैन डू more efficiently the work. Okay, so it's the relationship between the actual content what is present in my body, and after taking the food with, so I'll become saturated at that time. So that is the relationship between messy poverty adjustment. Okay, so we have to adjust that poverty, we have to adjust that hunger. So इसे क्या वजह से एक होता है हमारा लग्जरी कंजप्शन, एक होता है हमारा लग्जरी कंजप्शन। So who will tell me what is luxury consumption? सर लग्जरी कंजम्पशन इज जब प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, वो फिर भी उसको कंज्यूम करते जा रहा है सॉइल से। पोटेशियम के केस में होता है ऐसा। या और वो टॉक्सिसिटी सिम्टम भी नहीं दिखाएगा, ऐसा ना, नहीं, डिले कर देता है। या टॉक्सिक सिम्टम भी नहीं दिखाएगा, तो ये हमारा पोटेशियम में पाया जाता है, ऐसा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर किसी न्यूट्रिएंट को जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन है, अगर उससे कम पाया जाए तो क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम दिखा जाएगा, ऐसा ना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी सिम्टम। ओके, तो मेसी पोवर्टी एडजस्टमेंट हमको ये दर्शाता है कि प्लांट में सभी न्यूट्रिएंट का एक क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन होता है, उससे अगर कम होगा तो उसका हम बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर उससे ज्यादा होगा तो उसका हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट एक मतलब एक कैपेसिटी होता है, वो लेते ही जा रहे पर वहां पे कुछ टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन, जो कि हमारा पोटेशियम में वो पाया जाता है कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा लॉ ऑफ मैक्सिमम, लॉ ऑफ मिनिमम पढ़े, इसको किसने दिया था, लिविंग ने दिया था इन 1840। लॉ ऑफ मैक्सिमम क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। इट वाज गिवन बाय वॉलास इन 1993। ओके, इसको किसने दिया था, वॉलास ने दिया था, लॉ इन 1993 में दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जब सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन होता है प्लांट में, ओके, एक प्लांट जब एक प्लांट के साथ ग्रो होता है तो क्या होता है कि वो यील्ड बढ़ा देते हैं, कोई कोई प्लांट दूसरे क्रॉप का यील्ड बढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। तो वो जो फिलोसफी है इसको वो लॉ ऑफ मैक्सिमम की तरह दर्शा दिए। ठीक है, वो आए देखे कि एक क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं और वो यील्ड बढ़ जा रहा है, मतलब अगर सोल क्रॉप की तरह ग्रो करे तो उनका यील्ड बहुत कम है, जब ये साथ में ग्रो होते हैं तो क्या होता है, यील्ड दोनों का बढ़ जाता है, या एक का ही बढ़ता है एक का वैसे रहता है, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ मैक्सिमम। तो ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, लॉ ऑफ मैक्सिमम किसने दिया था, वालास ने दिया था इन 1993। बढ़ते हैं, ये जनरल है, ये कोई लॉ नहीं है। ओके, वन बाउले यूनिट। ओके, सो बाउले यूनिट क्या है, कोई बताएगा थोड़ा, अगर किसी ने पढ़ा है तो बाउले यूनिट क्या होता है, एनीवन? मुझे हम भी देख लेते हैं आप कितना समझे इस बाउले यूनिट को, या आप नहीं जानते अभी तक। एनीवन? राजेश, आपको पता है? No, sir. Didn't hear. Didn't hear? Oh my God, this is most important question and you didn't hear. Okay, let me tell you. Okay, it's very easy, no problem. देखिए, मेरा एक फार्मर है राम बोल के, ठीक है,
और एक मेरा फार्म है श्याम, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, खेती करते हैं, ओके। और मैं हूं साइंटिस्ट, आलोक, आई एम द साइंटिस्ट। तो राम एंड श्याम जिस प्रोसेस से खेती करते हैं, वो धान का जो खेती करते हैं, उनको मिलता है ऑलमोस्ट, इसको मिलता है 20 क्विंटल पर एकड़, इसको मिलता है 30 क्विंटल पर एकड़। तो राम थोड़ा ऑफसेट है उसका यील्ड को लेकर। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास अप्रोच किया एंड ही आस्क्ड मी द सजेशन, यू प्लीज सजेस्ट मी समथिंग सो दैट आई कैन इम्प्रूव माय यील्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको साइंटिफिकली मेथड इसको हम गाइड किए। तो इसका यील्ड जो है हमने क्या बढ़ा दिया, 40 क्विंटल पर एकड़ बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 20 क्विंटल डिफरेंस है, यस और नो, 20 क्विंटल डिफरेंस है। सो ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस है हमारा, यस और नो, 50% डिफरेंस है। तो बाउले यूनिट क्या बोलता है, 1 यूनिट ऑफ एक्स whose addition means हम क्या किए, एक यूनिट ऐड किए, एक्स ऐड किए, produces a yield of 50% of the difference, 50% of the difference between the maximum potential yield and the yield which was obtained before its addition. Before addition कितना था, 20 क्विंटल था। आफ्टर एडिशन मैक्सिमम पोटेंशियल यील्ड कितना है, 40 क्विंटल। तो ये डिफरेंस 50%, मतलब 100% ना होने की भी, अगर 50%, मतलब टू प्रोड्यूस ए 50% डिफरेंस एटलीस्ट, प्रोड्यूस ए एटलीस्ट ए 50% डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बाउले यूनिट, इसको हम बोलते हैं बाउले यूनिट। सो फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। 1 यूनिट ऑफ एक्स whose addition produces a yield of 50% of the difference between the maximum potential yield and the yield which was obtained before its addition is called as Baule unit. So 1 Baule unit कितना होता है, नाइट्रोजन 223 kg per hectare या पाउंड्स पर एकड़, phosphorus 45 kg per hectare and potassium 76 kg per hectare। ये तीनों आपको पूछे जाएंगे। 1 Baule unit is equal to dash, नाइट्रोजन 223 kg per hectare, phosphorus 45 kg per hectare, potassium 76 kg per hectare। अगर आप इतना डालेंगे तो क्या होगा, 50% यील्ड डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। ये हमारा तात्पर्य है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 223, 45, 76, ठीक है, 223, 45, 76, आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। समझा आप सबको, अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन समझ में आया, एक बार थम कर दो। यस सर। ओके, चलते हैं फर्टिलाइजर के वर्ल्ड में, ओके, जिसको लेकर बहुत सारा कंपनी से, बहुत सारा लॉ से, पॉलिसी से, रेगुलेशन से, गाइडलाइन से, ठीक है। तो चलिए नहा लेते हैं फर्टिलाइजर में भी, ओके। फर्टिलाइजर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर, हु विल से मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सार बोलते हैं, खाद बोलते हैं। सो fertilizer, chemicals added to the soil to increase the productivity of the crop. yeah, exactly, in the similar way. So in the similar way, normal in बोरलग, ओके, जो कि कौन है, नॉर्मन ई बोरलग कौन है, जाना सुना लग रहा है नाम, कौन है ये, और इन्होंने क्या किया था, हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में अभी। एनीवन हु इज एन ई बोरलग, पता नहीं? Am I audible right properly? Sir, he gave the term green revolution. Yeah, he gave the term. Agronomist. Yeah, William S. Gauss gave the green revolution term. Hmm?
Sir, revolution father बोला of था। green revolution in the world. Yeah, he's the father of green revolution in the world. So why he is called as father of green revolution, Amma? Because he developed the dwarf wheat. Yes or no? नॉरिंटन इन्होंने दिया था, ठीक है। सो इसलिए मतलब जब एक ड्वार्फ व्हीट जब आया ना, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज, ओके, तो इनके वजह से क्या हुआ कि जो उत्पादन है व्हीट का वो बढ़ गया, ओके। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया में किसको किनको मतलब कौन किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। तो इन्होंने एक डिफिनेशन दिया था फर्टिलाइजर का, जो कि मतलब हार्ट टच है, मतलब जब भी आप पढ़ोगे ना, दिस विल टच योर हार्ट। सो इतना सोच के ये दिया था इन्होंने। क्या बताया? इफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट आर द कैटलिस्ट टू इग्नाइट द ग्रीन रेवोल्यूशन, देन फर्टिलाइजर्स आर द फ्यूल। बहुत अच्छा बात बताया ना। अगर हमारा जो जितना भी वेराइटीज है, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट, ओके, अगर वह कैटलिस्ट है टू इग्नाइट द ग्रीन रेवोल्यूशन, के ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर वो मतलब जलाने के लिए अगर कैटलिस्ट है, मतलब वुड से या कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, तो फ्यूल कौन है? हम फूल डालते हैं ज्यादा जलने के लिए, फ्यूल कौन है? फर्टिलाइजर। मस्त लाइन बोला है ना इन्होंने, एकदम हार्ट टच है सर ना। तो आप ऐसे भी मतलब आप ये अगर ये लाइन आप यूज कर सकते हैं दूसरे लाइन में। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि अगर एक कंपनी में अगर सारा का सारा जो मेंबर है, जो प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है, अगर वो कैटलिस्ट है, तो फ्यूल कौन है? बट अगर कंपनी के ग्रोथ के फ्यूल कौन है? सेल्स पर्सन, ओके। इफ दे विल नॉट सेल्स द fertilizers or any products, so what will happen? The growth, how it will occur? Ultimately the cell is required, so the sales persons are act as a fuel in any companies. Yes or no? Do you agree with me or not? Yes, sir. Yeah. So अगर हम देखें एक बाइक में, ओके, एक बाइक में इंजन है, all other parts are remain the same, but if there is no fuel, then the bike is no use. इलेक्ट्रिक बाइक है पर वो बैटरी अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सुनो, और बैटरी में चार्ज होना चाहिए। सो द फ्यूल कैन बी इन एनी फॉर्म, चार्ज, लिक्विड, एनीथिंग। सुनो, सो फर्टिलाइजर विल एक्ट एज ए फ्यूल, ओके। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं फर्टिलाइजर का थोड़ा। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नेक्स्ट टू चाइना। चाइना में बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है, फॉलोड बाय इंडिया। इन केस ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, इंडिया स्टैंड्स इन थर्ड पोजीशन नेक्स्ट टू चाइना एंड यूएसए, ओके। चाइना पहले आता है, देन यूएसए, देन इंडिया आता है। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंडिया में लॉन्च हुआ था 1908, ओके। इस 1908 और 9 इस साल में हमारा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये लॉन्च हुआ था इंडिया में। और ये जो फर्टिलाइजर है ये कब बना था, कब है पहले टाइम कब बना था, कौन बताएगा? एंड यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द एसएसपी। हु विल टेल मी? I will give you the first name L and G. You have to fill the blank. याद नहीं है? बताइए, याद कीजिए, दिमाग को मतलब एक्टिव कीजिए एकदम। SSP for the first time who developed with scientist? याद नहीं है? लॉस एंड गिलबर्ट। या इन्होंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का स्थापना किया था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का स्थापना किया था। और इन्होंने लॉन्ग टर्म मैन्युअल एक्सपेरिमेंट भी किया था, स्टार्ट किया था लॉन्ग टर्म मैन्युअल एक्सपेरिमेंट।
हमारे इंडिया में ये कहाँ पे था? प्रथम स्टेट। ओके, प्रथम स्टेट। हमारे इंडिया में पहली बार कहाँ पे लॉन्ग टर्म मैनुअल एक्सपेरिमेंट हुआ था? कौन बताएगा? पुराना वाला कहाँ है अभी? एनीवन? नो आइडिया? क्या यार, तुम लोग पढ़ते नहीं ये सब, तो मतलब जनरल नॉलेज है। तो पहली बार कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, जो कि अभी मतलब नॉट इन फंक्शन। उसके बाद हुआ था तमिलनाडु, कोयम्बटूर में हुआ था। ये अभी रनिंग है, ठीक है, ये सेकंड वाला है पर रनिंग है। उसके बाद मतलब बहुत सारे प्लेसेस में किया गया, तो वो सारा के सारा बंद हो गया अभी। तो अभी ओनली फंक्शन इज तमिलनाडु, कोयम्बटूर में लॉन्ग टर्म मैनुअल एक्सपेरिमेंट वो काम कर रहे हैं, ठीक है। देन पोटास इज द ओनली इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर इन इंडिया। ओके, इंडिया में पोटास को हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा सोर्सेस नहीं है। फिर भी देखा जाए तो राजस्थान में कोई कोई पाया जाते हैं, राजस्थान में थोड़ा माइनिंग पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार में थोड़ा पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत क्वचित। ओके, नॉट दैट मच अमाउंट। देन फर्टिलाइजर को हम क्लासिफाई किए उनके जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट से वजह से। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली वन न्यूट्रिएंट, वन मेजर न्यूट्रिएंट विल बी अवेलेबल, एन और पी और के। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिया इज ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर। पी का अगर देखा जाए तो एसएसपी होता है। ओके, देन हमारा होता है डीएसपी, डबल सुपर फॉस्फेट या टीएसपी हो गया, ठीक है। देन पोटेशियम का देखा जाए तो एमओपी, पोटास, वो एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। पोटास कितना कंटेंट होता है? 60% होता है ऑलमोस्ट। देन आता है हमारा कंपाउंड फर्टिलाइजर। कंपाउंड फर्टिलाइजर कौन बोलेगा? किसको बोला जाता है कंपाउंड फर्टिलाइजर? एनीवन? नो आइडिया? कंपाउंड फर्टिलाइजर हम जहां पे दो मेजर न्यूट्रिएंट तो या टाइम विद दो या प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल, या अगर किसी फर्टिलाइजर में दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड फर्टिलाइजर। कोई एक एग्जांपल देगा? एग्जांपल? टीएपी। एपी, या डीएपी, ग्रोमर हो गया हमारा, ऐसा ना। सो डीएपी में कौन सा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? एन भी पाए जाते हैं और पी भी पाए जाते हैं। पी यहाँ पे 46 पाए जाते हैं और एन कितने पाए जाते हैं? 18% पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रोमर में एन एंड पी का रेशियो होता है 20, 28, 28, ये ग्रेड पाए जाते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होता है? कौन बताएगा? मिक्स्ड फर्टिलाइजर एनीवन? मिक्स्ड फर्टिलाइजर किसको बोला जाता है? बहुत इजी है, बताइए। याद नहीं है? ठीक है। मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है कि फिजिकल मिक्सचर। ओके, ये अगर मतलब कोई प्री मेड नहीं है, यहाँ पे हम फिजिकल मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर, फिजिकल मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर, ओके, ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम यूरिया के साथ पोटास अगर मिला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। देन आता है हमारा कंप्लीट फर्टिलाइजर, जहाँ पे तीनों के तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट वहां पे अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल श्यामला, श्यामला एक फर्टिलाइजर आता है, ठीक है, वहां पे एन पी के पाया जाता है 15:15:15। ओके, इतना रेशियो में श्यामला फर्टिलाइजर आता है। देन आता है हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे? जहां पे कार्बन दिखा जाएगा। इनऑर्गेनिक जहां पे कार्बन एब्सेंट होगा। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर दिखा जाए तो कैल्शियम सियानामाइड को बोलते हैं, और एक बोलते हैं हमारा यूरिया। ओके, यूरिया की भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह देखते हैं, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर से, फॉर एग्जांपल ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर रेशियो एंड कंडीशनर।
ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर मतलब इट इज द गारंटीड minimum percentage N, P and K present in the fertilizer. For example, 28, 28, 28. Okay, अगर देखा जाए तो 28 kg अवेलेबल होगा नाइट्रोजन इन 100 kg, ठीक है. 28 kg of phosphorus available होगा in 100 kg and 28 kg of potassium will be available in 100 kg. Then fertilizer ratio, it is the ratio of the percentage of NPK. If the grade is 12:6:6, then the ratio is 2:1:1. For example, अगर हम देखा जाए तो अगर 18:46 and 0 इसका अगर रेशियो अगर निकाला जाए तो आपको करना पड़ेगा कि कितना रेशियो आ रहा है, ठीक है. Then conditioner, the materials added to the fertilizer to reduce hygroscopicity and improving physical condition. Okay, किसी भी मेटेरियल को आप डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर क्या होता है, अगर हाइग्रोस्कोपिसिटी को रिड्यूस करना है हमको, या हमको कोई फिजिकल कंडीशन को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, वी हैव टू इंक्रीज द फिजिकल कंडीशन, देन उसको बोलते हैं हम कंडीशनर, ठीक है. और एक आता है हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, और एक आता है हमारा लो एनालिसिस फर्टिलाइजर. तो कौन बताएगा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं और लो एनालिसिस फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? Anyone? या भूल गए सब? ये सब जनरल एग्रीकल्चर है, अभी तक हमने एक्चुअली डीप नहीं लगाया. लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में लेस देन 25% होता है, या लेस देन न्यूट्रिएंट, और हाई एनालिसिस ग्रेटर देन दैट. या ओके, सो टेल मी DAP will where it will go, here or here? अगर मैं एग्जांपल लूं DAP का तो वो एक हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है या लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है, बताओ. हाई एनालिसिस. इट विल बी हाई एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे 1846 बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है. लो एनालिसिस फर्टिलाइजर देखा जाए तो जहाँ पे कम पाए जाते हैं वहां पे 25% से लेस होगा. तो फॉर एग्जांपल आई कैन टेक सोडियम नाइट्रेट, आई कैन टेक सोडियम नाइट्रेट जहाँ पे 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है. पोटेशियम नाइट्रेट आल्सो कैन टेक जहाँ पे 30% नाइट्रोजन पाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. देन हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में, उसके बाद फास्फोरस, पोटेशियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, देन to make the nitrogen fertilizer, there are different processes are involved, okay, to prepare the raw materials. So यहाँ पे raw materials क्या है? NH3 है. मतलब अभी जो भी यूरिया फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बन रहा है उनका सोर्स क्या है? NH3. तो NH3 किस प्रोसेस से बनता है वो वहां से क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप देखते रह जाएंगे और आपको पता है और आप कर नहीं पाएंगे. ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और आप ये क्वेश्चन अटेंड कर पाए, ठीक है. तो एक प्रोसेस होता है सियानामाइड प्रोसेस, जो कि फर्स्ट फर्टिलाइजर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है. इट वाज गिवन बाय ए फ्रैंक एंड निकोडन कारो. इन दो साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को दिया था. इन्होंने क्या किया था? हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन एट टेम्परेचर 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस कैल्शियम सियानामाइड, ठीक है. तो कैल्शियम कार्बोनेट को कितना हिट किए? 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में हिट की. तो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ऑन स्लैक्ड लाइम, ऐसा नो, या बर्न्ट लाइम, जिसको हम बोलते हैं बर्न्ट लाइम. तो फर्दर इट विल बी डिवाइड टू कैल्शियम. कैल्शियम ये क्या है? सी क्या है? कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. देन सॉरी, ये कैल्शियम कार्बाइड समथिंग आता है, कैल्शियम कार्बाइड होगा. देन इट विल बी कन्वर्टेड टू कैल्शियम सियानामाइड आफ्टर रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, ठीक है. तो ये वाला जो है, दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर टू बी यूज्ड. एंड ये क्या है?
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये बेसिक फर्टिलाइजर है, एक बेसिक फर्टिलाइजर है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना टेम्परेचर यूज किया गया, ये वाला क्वेश्चन आता है 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। किसने किया था? ए फ्रैंक एंड निकोटन कारण ने किया था, ठीक है। अगर सियानामाइड है तो यू हैव टू बी फ्रैंक, ओके, यू हैव टू बी फ्रैंक एंड यू हैव टू ड्राइव द कार, ओके, यू हैव टू ड्राइव द कार। सो जब सियानामाइड आपके पास हो ना तो बहुत ही डेंजरस होता है, तो यू हैव टू बी फ्रैंक एंड यू हैव टू ड्राइव द कार वेरी सेफली, ठीक है। आप ऐसे याद रखते हैं साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। देन आता है हमारा एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो दिया जाता है, ओके। गिवन बाय बिर्कलैंड एंड ईट, इन्होंने क्या किया था, N2 एंड O2 को मिलवाया था इलेक्ट्रिक आर्क देके 2NO + O2, इन्होंने नाइट्रेट का ओवन किया था ताकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाबर-बोस प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और ये when I gave for the first time SRF, okay, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था। I was just looking the question, means I know but I couldn't attend, okay, इस तरह का हालत था मेरा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इन्होंने दिया 3H2 + N2 give rise to 2NH3। यहाँ पे मतलब it can go anywhere, okay, so it can both way process, it is a both way process। तो ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, दो, इसका एक नाम है, इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, ले चार्टलर्स प्रिंसिपल बोलते हैं, ले चार्टलर्स प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम वो मेंटेन करते हैं ए एंड बी साइड से, ठीक है। तो हाबर-बोस ने एक प्रोसेस दिया था जहाँ पे हाइड्रोजन एंड N2 को वो मिलवाए थे, बहुत सारा प्रेशर एंड एक बहुत सारा टेम्परेचर देके इनको मिलवाए के एक एमोनिया प्रोड्यूस किए थे, जो कि अभी मतलब अभी ये बहुत ज्यादा यूज होता है NH3, ठीक है। सो इट इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनियम, इट इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनियम, ओके। हमारा तो जो N2 है वो हवा में बहुत ज्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 78% ऑलमोस्ट पाया जाते हैं। और हाइड्रोजन दे दिया, N2 को मिला लिया, क्या प्रोड्यूस कर दिए, NH3, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर इसको देंगे, और प्रेशर कितना देंगे, 200 to 1000 kg/cm², इसको प्रेशर देंगे, तब जाके ये हो पाएगा। और कैटालिस्ट कौन कौन रहेंगे, Fe2O3, Al2O3, K2O, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बॉन्ड लाइन। ये वाला भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। हाबर-बोस प्रोसेस में कैटालिस्ट आर Fe2O3, Al2O3, K2O, Mg एंड कैल्शियम ऑक्साइड। So it is an exothermic process. It is not an endothermic process. It is an exothermic process. बहुत बार पूछा गया सवाल है NT के द्वारा, okay? Haber-Bosch process is an exothermic process. मतलब हीट निकलता है, ठीक है, हीट will be generate. And यहाँ पे क्या होता है, लीच चार्टलर्स प्रिंसिपल यूज होता है, हमने बताया ये क्या होता है। And it is used in the explosive making, for example, TNT and RDX. You can heard these words in the movies, okay? वो एक आतंकवादी है जो RDX लेके है, उसके पास 2 टन का RDX है, मतलब वो जो हम बम प्रिपेयर करते हैं ना, बम के लिए RDX एंड TNT का बहुत ही यूज होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव मेकिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और एक है हमारा अमोनियम नाइट्रेट, ओके, अमोनियम नाइट्रेट। ये वाला जो फर्टिलाइजर है ना, ये इतना फर्टिलाइजर नहीं, पर ये भी एक्सप्लोसिव मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजर है, ओके। अमोनिया इज वेरी डेंजरस, इवन इन द गैसेस फॉर्म इट इज वेरी डेंजरस, आल्सो इट इज टॉक्सिक टू द प्लांट, आल्सो इट इज टॉक्सिक टू द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये TNT एंड RDX
यूज करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये याद रखना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन कैटलिस्ट है यहाँ पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर कितने चाहिए? टेम्परेचर कितना चाहिए? 400 से 450 चाहिए, और प्रेशर 200 टू 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये वाला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा फर्टिलाइजर। ओके, एक फ्लो अगर देखा जाए, ठीक है, पर ऊपर नहीं जाएगा क्या? ठीक ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि NH3 अगर हम डायरेक्ट लें तो क्या होगा? एनहाइड्रस एमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एनहाइड्रस एमोनिया प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे 8 to 2.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, देन NH3 को अगर हम HCl के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। अगर हम NH3 के साथ H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट होगा, और उसको अगर हम कैल्शियम कार्बन रिएक्ट करेंगे तो हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? यूरिया प्रोड्यूस होगा, NH2CO NH2, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ किया जाए तो मोनोअमोनियम फॉस्फेट एंड डाइअमोनियम फॉस्फेट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड अगर SSP के साथ किया जाए तो अमोनियम सुपर फॉस्फेट प्लस यूरिया, अगर हम तो अमोनियम सुपर फॉस्फेट हुआ, उस पर अगर यूरिया मिला जाए तो यूरिया अमोनियम फॉस्फेट या ग्रोमर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। ओके, ये आपको बस एक क्या होता है, ग्लिम्स ऑफ नोइंग द फर्टिलाइजर। ठीक है, देन आता है हमारा एनहाइड्रस फर्टिलाइजर। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसको मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर माना जाता है। ठीक है, एंड इट इज गैस एट नेचुरल कंडीशन। अगर नेचुरल कंडीशन में देखा जाए तो ये गैस में देखा जाता है, पर इसको बहुत ही मतलब प्रेशर डाल के इसको लिक्विफाइज किया जाता है। तो कितना टेम्परेचर में? -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लिक्विफाई किया जाता है, और इसको अप्लाई करने के लिए हमको स्पेशल एप्लीकेटर की बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे 82.2% का नाइट्रोजन देखने को मिलता है। मेरा मार्कर बहुत स्लो है ना अभी? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, और एक आता है हमारा यूरिया, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल फर्टिलाइजर है, लायबल फर्टिलाइजर है, और इसको बहुत ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है, और फार्मर्स का फ्रेंड है यूरिया। ओके, और उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर फर्टिलाइजर का बात आए, खाद का बात आए, तो उसके दिमाग में बस यूरिया ही आता है। ठीक है, और कोई फर्टिलाइजर नहीं आता है। यूरिया, पोटास, ये दोनों फर्टिलाइजर ही आएंगे उसके दिमाग में, इतना यूज होता है। सो मोस्ट वाइडली यूज एन फर्टिलाइजर इन इंडिया, क्योंकि इसका जो ग्रानुल फॉर्म है बहुत ही आसान होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ओके, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ठीक है, ये इतना स्लो क्यों हो रहा है? ओके, तो एंड हु आइसोलेटेड यूरिया फ्रॉम यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम? राउले ने किया था। ठीक है,
and Holloway discovered first urea. Okay, Holloway discovered first urea. सो यूरिया को पहले किसने डिस्कवर किया था? होलर ने किया था। और यूरिन से यूरिया को किसने आइसोलेट किया था? राउले ने। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। एंड यूरिया इज द एमाइड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? एमाइड फॉर्म में है। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है इसका। और एक एमाइड फॉर्मूला और एक एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है? कैल्शियम सियानामाइड। ठीक है, एंड इट इज मॉडरेटली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब इतना हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, मतलब पानी वो नहीं लेता है एटमॉस्फेयर से। तो CRS वैल्यू कितना है? क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। CRS मतलब क्या है? क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका वैल्यू है 72%। ठीक है, एंड इसका जो बायोरेट कंटेंट होता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, जब इसको हम मतलब अमोनिया को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हिट किया जाता है तो बायोरेट कंटेंट मतलब क्रिएट होता है। तो अगर 1.5% अगर आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है तो इसका बायोरेट कंटेंट 1.5% होना चाहिए, रिकमेंडेड है। अगर फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो 0.5% होना चाहिए। ठीक है, एंड यूरिया सुपर ग्रेनुल का साइज कितना होता है? 10 to 11 mm साइज एंड 1 ग्राम वेट का होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। और एक आता है ब्रिकेट साइज, यूरिया ब्रिकेट साइज आई थिंक 3 ग्राम का वो होता है। ठीक है, देन इक्विवेलेंट एसिडिटी देख लेते हैं। सारा का सारा फर्टिलाइजर का इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या है? तो जब भी हम एक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वहां पे एसिडिटी क्रिएट होता है, सॉइल एसिडिटी क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हमको लाइम अप्लाई करना पड़ता है। हमको लाइम अप्लाई करना पड़ता है। तो कितना लाइम अप्लाई करते हैं उस एसिडिटी को न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। तो यूरिया में कितना होता है? 80 kg, मतलब यूरिया में लाइम रिक्वायर्ड में कितना होता है? 80 kg। अमोनियम सल्फेट में 110 kg, अमोनियम क्लोराइड में 127 kg, एनहाइड्रस अमोनिया 148 kg, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 kg। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम यूज होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फर्टिलाइजर। DAP में 76 kg पाया जाता है एंड अमोनियम नाइट्रेट में 63 kg पाया जाते हैं। ठीक है, और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ओके, वहां पे 86 kg होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट एसिडिटी से वन क्वेश्चन इज मस्ट। यूरिया का पूछा जा सकता है, अमोनियम सल्फेट का पूछा जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड का भी पूछा सकता है। और मुझे तो लगता है इन पांचों में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। DAP का तो अभी तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो मोस्टली अमोनियम क्लोराइड का पूछा जाता है 127 kg एंड अमोनियम सल्फेट। तो ये दोनों आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये 5 अगर आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन मस्ट आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला ऊपर नहीं जा रहा है, दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। ठीक, जाने दो। यहाँ पे लिखा है हम अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है? 20.6% पाया जाता है एंड सल्फर कितना पाया जाता है? 24%। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है। इसको अगर हम राउंड फिगर करते हैं 21% यहाँ पे पाया जाता है एंड सल्फर 24% पाया जाता है, आपको याद रखना है। और अमोनियम सल्फेट को हम राइस फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? राइस फर्टिलाइजर बोलते हैं। यस और नो? इसको हम बोलते हैं राइस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जब आप अमोनियम फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर डालेंगे राइस में, तो राइस क्या होता है? एक मतलब वाटर स्टैग्नेशन होता है वहां पे। जैसे ना वाटर स्टैग्नेशन मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन, मतलब पूरा हार्वेस्ट के टाइम तक रहता है थोड़ा बहुत, ये सब ना। तो उसको उस मतलब वहां पे हम अमोनियम कहाँ पे डालना है? रेड्यूस्ड जोन में डालना है। ओके, राइस में रेड्यूस्ड जोन में डालना है हमको। अगर आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसको हम ऑक्सीडाइज्ड जोन में डालना है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड जोन में डालना है। तो जब आप रेड्यूस्ड जोन में डालेंगे तो ये क्या चेक करेगा? डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस
वो चेक करेगा। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वो चेक करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे को ऑलरेडी, ओके, कि वाटर लो लाइन राइस में कौन सा ज्यादा लॉसेस होता है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज्यादा होता है, इसलिए हमको अमोनियम फॉर्म कहाँ पे डालना है, रेड्यूस्ड जोन में डालना है। ठीक है, इसका सीआरएस वैल्यू कितना है, 81 है, मतलब जितना ज्यादा सीआरएस वैल्यू उतना ही कम हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, देन इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री एट जमशेदपुर झारखंड। ये बात बहुत बार पूछा गया सवाल है, जो अमोनियम सल्फेट है वो किसका बाई प्रोडक्ट है, वो स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, और पहली बार कहाँ पे बना था, जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे कितना कंटेंट पाया जाता है, एन कंटेंट 33%, जो कि लेस एफिशिएंसी है यूरिया को अगर देखा जाए तो। यूरिया में कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है, और इसका सीआरएस वैल्यू कितना है, 59, वेरी हाइग्रोस्कोपिक, हाईली हाइग्रोस्कोपिसिटी, एंड इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। हमारा एक कंट्री है, ओके, कौन सा नाम है, यूक्रेन के पास एक कंट्री है, स्मॉल कंट्री है यूक्रेन के पास, ठीक है, लिबानन के पास, ठीक है, लिबानन के पास। यहाँ पे क्या हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक्सप्लोसिव कंटेंट है, उसको मतलब बम क्रिएट करने के लिए वो यूक्रेशिया से वो कहाँ जा रहा था, रशिया जा रहा था, एक कंटेनर। ओके, तो क्या हुआ, जब वो शिप मतलब खराब हो गया तो कुछ दौरान रोकने पड़ा। ओके, इस लिबानन के आसपास उसको रोकने पड़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो अमोनियम नाइट्रेट वहां पे रह गया, वो चले गए, वो जो शिप के जो थे कैप्टन वो चले गए, और बहुत साल के बाद जो इस कंट्री का, ओके, कंट्री याद नहीं आ रहे, उस कंट्री का गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक गोदाम में रख दिया। ओके, एंड विदाउट एनी मेंटेनेंस, ओके, विदाउट एनी प्रॉपर मेंटेनेंस उन्होंने रख दिया। तो क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम, ओके, आग लगने की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ, पूरा मतलब वो पूरा का पूरा जो कंट्री है वो पूरा एकदम अबाक रह गया। बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव, बहुत लोग मारा गए। ओके, 2020 का इंसिडेंट है ये। ठीक है, अगर आप चाहे तो गूगल में सर्च कीजिए अमोनियम नाइट्रेट इश्यू इन नियर लिबानन, या ऐसे कुछ सर्च कीजिए, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, कैसे हुआ था और कौन इसका जिम्मेदार है, ये सब पढ़िएगा। ओके, बहुत अच्छा स्टोरी है। देन आता है हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसका हम बोलते हैं किसान खाद या किसान चौक, क्योंकि ये एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, इसलिए इसको हम किसान खाद बोलते हैं, और यहाँ पे एन कंटेंट 25% पाया जाता है। देन आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, जहाँ पे एन कंटेंट 25% पाया जाता है, किसी किसी बुक में आपको 26% भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, एंड हाईएस्ट एसिडिक इक्विवेलेंट दैट इज 127 पाया जाता है यहाँ पे। और अगर आप कंपेयर करें तो अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, तो कौन ज्यादा सुपीरियर है, अमोनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू अमोनियम सल्फेट। तो ये वाला क्वेश्चन आता है आपका स्टेटमेंट में आता है। ओके, ऐसे दे देंगे आप, अमोनियम क्लोराइड ग्रेटर देन अमोनियम सल्फेट ग्रेटर देन यूरिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है। और एसिडिटी कौन ज्यादा, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, ये भी आता है। अमोनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा एसिडिक है, फॉलोड बाय अमोनियम सल्फेट, फॉलोड बाय अमोनियम नाइट्रेट, देन फॉलोड बाय यूरिया। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है आपका। ये वाला आप मतलब ऐसे नहीं कि ये सब कुछ आप मतलब नोट में होंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हाँ एसिडिक इक्विवेलेंट आप देख लिए तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि ये कौन सा बहुत ज्यादा एसिडिक है। हमने बताया जब आप अमोनियम डालेंगे तो क्या होगा, जो पीएच है सॉइल का वो कम होगा, मतलब ड्यू टू रिलीज ऑफ H+ आयन, ड्यू टू रिलीज ऑफ H+ आयन तो पीएच विल बी रिड्यूस। जब आप एक नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या होगा, द पीएच विल बी
increase due to release of hydroxyl ion. Due to release of hydroxyl ion. Then some basic fertilizer, for example, सोडियम नाइट्रेट है जहाँ पे 16% पाया जाता है, वहां पे क्या होता है इक्विवेलेंट बेसिसिटी मापा जाता है. ओके, जो यहाँ पर जो बेसिसिटी जो क्रिएट करते हैं, तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स. फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट हम यूज कर सकते हैं, तो उसका होता है 29 सोडियम नाइट्रेट का. पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रेट पाया जाता है. कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका इक्विवेलेंट बेसिस 21 है. कैल्शियम सियानामाइड 20 to 22% नाइट्रोजन पाया जाता है. 37% कैल्शियम होता है इसमें और इक्विवेलेंट बेसिस कितना होता है 63 होता है. ठीक है, समझ में आया आपको? इतना हम जो भी पढ़ाए समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? हेलो, हेलो, समझ में आया सबको? Yes, sir. विनय, समझ में आया आपको? विनय इज नॉट देयर. राजेश, समझ में आया? Yes, sir. ओके. मेघना, Yes, sir. अंशुली, समझ में आया आपको? यस सर. ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, तो आज के लिए इतना ही. हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में जो कि हमारा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल स्लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है. ओके, और कंट्रोल रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है. ठीक है, और फास्फोरस, पोटेशियम, बाकी सारे फर्टिलाइजर हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम जो चौथा क्लास होगा हम सॉइल साइंस का पोर्शन वो फिनिश कर देंगे. अगर बहुत ही बड़ा चैप्टर है इसलिए मतलब पहले से ही जो भी वीडियोस बना के रखे उसका आप वीडियो देख लेना थोड़ा बहुत, और ये वाला हम पोर्शन फिनिश कर देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है. ठीक है, समझ में आया आपको?